दुनिया की राजनीति में एक और नया मोड़, जहां अमेरिका ने रूस के दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस की सरकार और राष्ट्रपति पुतिन ने इसे पूरी तरीके से गैर दोस्ताना और शत्रुतापूर्ण कदम बताया है। अब रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तेल, मिसाइल और आर्थिक प्रतिबंधों की जटिल लड़ाई ने वैश्विक राजनीति की गर्मी को और बढ़ा दिया है। दोनों महाशक्तियों के बीच कूटनीति और रणनीति ने एक बार फिर दुनिया की नजरें रूस और अमेरिका की ओर मोड़ दी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति और तेल की लड़ाई में आज फिर नया मोड़ देखने को मिला है। अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। बिल्कुल, और इसके तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि रूस कभी भी किसी भारी दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरीके से गैर दोस्ताना और शत्रुतापूर्ण कदम करार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, पुतिन की चेतावनी साफ है। उन्होंने कहा कि अगर रूस की सीमा के भीतर कोई हमला किया गया तो उसका जवाब बेहद गंभीर और भारी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव में आकर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं करेगा। जी हाँ, लेकिन भावना यहाँ पर एक बात समझ नहीं आती। अभी हाल ही में ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाए थे, उसके बाद भारत ने खुली चेतावनी दी थी, अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है तो उस पर और भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। Today issues with the United States, a big part of it is the fact that we have not arrived at a landing ground for our trade discussions. In addition, there is a second tariff, which, we have said, we publicly said, we regard it as very unfair, which has picked on us. I don't want, I'm not minimizing the issues, but I don't think we should take it to a point as though this is going to percolate to every dimension of the relationship and there is something very fundamental at stake there. I think we need to see this in proportion. So I think when you have, again, a world where trade, the central subject, consideration of trade has now become tariffs. Please explain to me, where comparative advantages and competitiveness go. So it's not just the basics of politics that we are revisiting. In many ways, it is also the basics of economics. On the India-US issues, look, we have today issues with the United States. A big part of it is the fact that we have not arrived at a landing ground for our trade discussions. And the inability so far to reach there has led to a certain tariff being levied on India. In addition, there is a second tariff, which, we have said, we publicly said, we regard it as very unfair, which has picked on us for sourcing energy from Russia, when of course there are other countries who have done so, including countries who right now have a far more antagonistic relationship with Russia than we do. So I don't want, I'm not minimizing the issues, but I don't think we should take it to a point as though this is going to percolate to every dimension of the relationship and there is something very fundamental at stake there. I think we need to see this in proportion. There are problems, there are issues. Nobody is in denial of it. Those issues need to be negotiated and discussed and resolved, which is exactly what we are trying to do. But I would really sort of hesitate to read very much more into it than the issues themselves. I think I also want to say a large part of the relationship is actually continuing either as business as usual or in fact in some cases even doing more than it was doing before. लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप की पुतिन से मीटिंग हुई थी, उसके बाद सहमति जताई गई थी दोनों तरफ से, लेकिन अब फिर से इन दोनों की दोस्ती में दरार दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है।
और यही नहीं तान्या, पुतिन ने यह भी बताया है कि रूस का एनर्जी सेक्टर मजबूत और आत्मविश्वास से भरा है। उनके अनुसार वैश्विक ऊर्जा संतुलन बिगड़ा तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो अमेरिका जैसे देशों के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है, खासकर तब जब घरेलू राजनीति माहौल नाजुक हो। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी ओर अमेरिका ने उन देशों को भी निशाना बनाया जो रूसी तेल खरीदते हैं। चीन और भारत इस मामले में प्रमुख हैं। ट्रंप ने चीन से आयातित सामान पर पहले से लगे 155% टैक्स में और 100% वृद्धि की घोषणा की, जबकि भारत पर 50% का भारी टैक्स लगाया गया। लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह अपने लोगों के हित में रूस से तेल का आयात नहीं रोकेगा। वहीं चीन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका भारत पर टैक्स घटाकर 15 से 16% कर सकता है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन द्वारा अमेरिका से मिली लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की खबरें पर भी पुतिन ने कड़ी चेतावनी दी है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। पुतिन ने कहा कि अगर इसका इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए हुआ तो इसका जवाब बेहद गंभीर और भारी हो सकता है। इसी बीच रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण अभ्यास किया है। ठीक इसके अगले दिन अमेरिका ने ट्रंप और पुतिन के बीच दूसरी शिखर बैठक की योजना टाल दी है। ये स्पष्ट संदेश है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ट्रंप के इन बड़े टैरिफों और प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मध्यस्थता का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है दोनों देशों के बीच। यानी कि पुतिन की बात उनकी नहीं मान रहे हैं। दोनों देश आपस में अभी भी भिड़ने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने आर्थिक दबाव के बावजूद रूस की स्थिति मजबूत बनी रहने की बात कही है। उनका कहना है कि रूस का एनर्जी सेक्टर आत्मविश्वास से भरा है और वैश्विक तेल बाजार में किसी भी तरीके की हेरफेर की स्थिति में रूस और उसके सहयोगी देशों को अवसर मिल सकता है। लेकिन तेल, मिसाइल और आर्थिक प्रतिबंध ये मुद्दे रूस अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। आने वाले समय में इन कदमों के असर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर और गहरा हो सकता है। वैश्विक राजनीति में ये लड़ाई केवल आर्थिक या राजनीति की नहीं है, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर भी गंभीर परिणाम ला रही है। रूस और अमेरिका की हर नई कार्रवाई दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच रही हैं। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।